So yesterday we have already discussed about the funds flow statement. What is funds flow statement? Under funds flow statement we are going to prepare the three types of statements. The first one is changes in working capital. The second one is funds flow from operations. The third one is funds flow statement, that is sources and application. Yesterday we have done a problem related to the changes in working capital. That was the question number 1 of our book, under which we have seen that current assets and current liabilities are taken, and we have find out the answer that was here. Working capital and net decrease in working capital was our answer. That was 11,950. So I told you that today we are going to discuss about the funds flow from operations. What are funds flow from operations means? The intangibles or the non-operating transactions we are going to take here. That for example we can take that goodwill, the depreciation, like these transactions. So it can be made in the two forms. The first one is the vertical form and the second one is the horizontal form. सो दोनों टाइप से हम इसको बना सकते हैं. फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इसके अंदर हमें सिर्फ क्या लेना है, इंटेंजिबल्स, और क्या लेना है हमें इसमें, जो कि हमारी जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो सकती है या गुडविल की वैल्यू हो सकती है, तो ये हमें इसमें लेना है. और ये किसी हमारे नेट प्रॉफिट के बेस पे ही इसका आंसर आएगा फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का. So today we are going to solve this second question of our book. Yesterday we have solved the question number 1 and today we are going to solve the question number 2. So let's start. It is our question. Calculate the fund flow from operation for the following profit and loss account. Profit and loss account is given here. Profit and loss account हमारे पास है, इसमें हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है. सो हम जो आज हम लोग लेने वाले हैं इसका, वो नेट प्रॉफिट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय द नेट प्रॉफिट. इट इज़ अ बेस वैल्यू on the basis of which we are going to solve the question. Here is the given salaries, rent and commission. ये तीनों हमारे इस यूज़ की नहीं है कि हम फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर इसको डालें, तो ये हमारे यूज़ की नहीं है. हमें इसमें क्या देखना है, सिर्फ जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रिजर्व्स ले सकते हैं, टैक्सेस ले सकते हैं, जो कि ऐसे इसमें गिवन है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज़. देन द ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व 20,000. Provision for depreciation, that is 14,000. Provision for tax, that is 10,000. Loss on sale of investment, that is 5,000. Discount on issue of debentures, that is 2,000. Preliminary expenses हमें तभी लेने हैं जब इसकी राइट ऑफ वैल्यू गिवन हो, बट यहाँ पे राइट ऑफ के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको नहीं लेंगे. देन द सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं लेने हैं हमें. और नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये हमारी बेस वैल्यू होगी. So the gross profit भी हमें नहीं लेना. Then comes the profit on sale of machine. So profit on sale of machine we are going to take here, that is 5,000. Then the refund of tax, it is also we are going to take in the statement. So here is the solution, you can see. Funds flow from operations. Funds flow from operations, as I earlier told you, that discount allowed we are going to take here. Discount allowed. सो नेट प्रॉफिट इज़ आवर बेस वैल्यू, दैट इज़ 1,20,000. और इसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमें नेट प्रॉफिट की वैल्यू में ऐड करने हैं. एक्सपेंसेस को ऐड करना है और जो भी हमारे जैसे इनकम होंगी या जिससे भी हमें रेवेन्यू हो सकती है या प्रॉफिट कुछ हो रहा है तो वो हमें इसमें लेस करना है. यही हमारे बेसिस होंगे. नेट प्रॉफिट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड करो, जो भी प्रॉफिट्स या इनकम हो रही है उसको लेस करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. इस क्वेश्चन में क्या क्या है चलो देखते हैं. हियर इज द डिस्काउंट अलाउड, वी हैव टेकन हियर 1,000 रुपीज़. देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज 14,000. देन द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दैट इज 20,000. प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज 10,000. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज 5,000. एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज़ 2,000. तो इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल करके हमारा कितना आया है, 52,000. देन कम्स द इनकम्स और प्रॉफिट्स. एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट वी हैव टू डिडक्ट इट. सो द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन्स ये हमें लेस करना है, दैट इज़ 5,000. रिफंड ऑफ टैक्स ये भी हमें लेस करना है, दैट इज़ 3,000. तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया है,
8000, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि हमें इसको डिडक्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, हमारी जो पहले आया था 1,20,000, ये हमारी बेस वैल्यू थी, नेट प्रॉफिट था। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है। 52,000 को हमने ऐड किया, 52,000 को हमने ऐड किया हमारे नेट प्रॉफिट में, जो क्या था 1,20,000 था। और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें से 8,000 को हमने लेस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो है 1,64,000। सो ये थी हमारी फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की स्टेटमेंट। तो ऐसे बनाते हैं। वर्किंग कैपिटल में हम क्या लेते हैं, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होते हैं, मेन यही होता है। जो करंट एसेट्स होते हैं उनके साथ जो वर्किंग कैपिटल की रेशो होती है या रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट। और वर्किंग कैपिटल के साथ करंट लायबिलिटीज़ की जो रिलेशन होती है वो इनडायरेक्ट होती है। और जो फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसमें हमने सिर्फ क्या क्या चीज़ें देखनी है, जिसके अंदर हमें कैश फ्लो होता नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें प्रॉफिट या लॉस तो हो रहा है बट उसके अंदर हमें कैश फ्लो नहीं नज़र आ रहा। जैसे गुडविल है, उसके अंदर हमें कैश फ्लो नहीं नज़र आएगा। डेप्रिसिएशन है, लॉस तो हो रहे हैं बट हमें नज़र नहीं आ रहे, तो वो क्या होंगी, हमारी इंटेंजिबल्स भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी हो सकती हैं। सो इसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट को लेना होता है, जो हमने यहाँ पे लिया है हमारा बेस वैल्यू करके, और इसके अंदर ही हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है, और वी हैव टू डिडक्ट द इनकम्स और द प्रॉफिट फ्रॉम द values that we have obtained by adding the expenses and the net profit. So the answer is the funds flow from operations. और आज हम एक और भी डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, जो हमारा थर्ड मेथड था, दैट वाज दी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज मीन्स द मनी वी आर रेजिंग बाय द डिफरेंट वेज, as by raising from the equity shares or preference shares or from the debentures or any other way. And application can be like the money is going out of the business due to the purchase of the land, machinery and all. Means जो major thing इसमें होती है वो क्या होती है, long term transactions are taken here. बट इस स्टेटमेंट, अब हम ये सोचेंगे कि इन दोनों का जो आंसर है वो निकालना क्यों ज़रूरी है। जब हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इन दोनों स्टेटमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि जब हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो हमारी इसमें से नेट इंक्रीज़ या नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आता है, जो कि हमें इस स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊँगी नेक्स्ट। और ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका भी जो आंसर हमारा आएगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका भी आंसर इस स्टेटमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी आर गोइंग टू डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ अ बुक, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स दैट आर द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। आई हैव डन हियर इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। सो दिस इज द क्वेश्चन. Question number 3. From the following data of X Company Limited, you are required to prepare a schedule of changes in working capital and statement of flow of funds. मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तो बता दिया था कि कैसे हम लोग उसका आंसर निकालते हैं. आई हैव अर्लियर टोल्ड यू अबाउट द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, बट टुडे I am going to tell you about the statement of flow of funds by the sources and application. So हमारी ये हमारा डाटा गिवन है, हमें एसेट्स गिवन है एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है. तो इसमें हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है दैट इज़ 50,000 एंड ओपनिंग बैलेंस है ये, और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये भी सेम है, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेनी कहीं भी. देन कम्स द प्लांट इज़ 24,000 ओपनिंग है एंड 34,000 जो है हमारा क्लोजिंग है. देन कम्स द स्टॉक दैट इज़ ओपनिंग 9,000 एंड क्लोजिंग 7,000. स्टॉक क्या है हमारा, करंट एसेट. तो करंट एसेट को हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं उसी के अंदर कंसीडर करेंगे, बट यहाँ जो सोर्सेज और एप्लीकेशन है इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस है वही इसके अंदर कंसीडर होगा. So then the debtors, these are also current assets. Cash at bank, these are also current assets. So we are not going to use these transactions. Then comes the capital and liabilities. Capital is a long-term transaction. So capital, the opening balance is the 80,000 and the closing balance is the 85,000.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स वी आर रेजिंग द कैपिटल. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ कैपिटल और सोर्स ऑफ फंड्स. सो 5000 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, 5000 से इंक्रीज कर रही है, वो मैं आपको शो करूँगी कि कहाँ पे हमें इसको पुट करना है. देन कम्स द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब हम अपनी जो फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेके इसका आंसर निकालते हैं, फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया था वो हमारी वर्टिकल फॉर्म में थी, बट जब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों का यूज़ होता है. तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगी इसका कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है जब हमें फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में निकालनी होती है. सो देन कम्स द क्रेडिटर्स, दीज आर ऑल्सो करंट लायबिलिटीज, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हियर. देन द मॉर्टगेज. मॉर्टगेज मीन्स हमने कुछ गिरवी रखा है या कुछ मॉर्टगेज पे रखा है, हम क्यों रखते हैं, फॉर रेजिंग द फंड्स. सो दिस इज आवर सोर्स ऑफ फंड्स. तो हमारा आंसर आ रहा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ 10,000. वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट है वो मैं आज आपको इसमें नहीं बनवा रही क्योंकि आपको पता है कैसे बनाना है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. सो द टोटल ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. सोर्सेज हमारे आएंगे 20,000 एंड एप्लीकेशन हमारी कितने आएगी 10,000. सो ये हमारी स्टेटमेंट है. फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है मैंने आपको वर्टिकल फॉर्म में करवाया था, बट टुडे आई एम डूइंग इट इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे बनाते हैं इसको. फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स जो भी हमें अप्रोप्रिएशन का अमाउंट दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर, द बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन मीन्स क्रेडिट साइड आएगा बाय द बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 14,500. जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमारा जो ओपनिंग था 14,500 था और क्लोजिंग 24,500 था. सो हमने यहाँ पे लिया हुआ, देखो ओपनिंग है 14,500, क्लोजिंग है 24,500, और जो भी इसका बैलेंस आएगा, अब हमें इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं है या फिर हमें जनरल रिजर्व वगैरह का भी कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ सेलेक्टेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं हम वही डालते हैं जैसे हमने आपको बताया है. सो हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे. बैलेंस क्या आएगा, बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आ जाएगा 10,000 रुपीज़. सो ये देखो हमारी बैलेंस हो रही है 24,500, यहाँ पर भी 24,500. अब जो हमारी मेन स्टेटमेंट है दैट इज़ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बाय द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन. अब सोर्सेज कहाँ कहाँ थे, मैंने आपको पहले बताया था कि सोर्सेज हमने कैसे निकालने हैं. ये हमारे जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग है. द फर्स्ट वन इज द लैंड एंड बिल्डिंग, देयर इज नो चेंज, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक हियर. इस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ क्या लेना है, जो लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स है वही लेनी है. लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं हमारे, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो हमें लेनी है. तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे. द सेकेंड कम्स द प्लांट. हियर इज अ चेंज इन द प्लांट्स, दैट इज ओपनिंग बैलेंस इज 24,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 34,000. सो इसका हमने क्या लेना है, बैलेंस लेना है सिर्फ. ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है तो दैट मीन्स हमारे जो सोर्सेज हैं या फंड्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, हम अपने सोर्सेज को लगा रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए, तो हमारे जो सोर्सेज हैं या फंड्स हैं वो जा रहे हैं. तो हमने प्लांट को यहाँ पे शो कर देना है. इसका बैलेंस कितना है 10,000. 10,000 हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे. उसके बाद आता है प्लांट नहीं, स्टॉक नहीं लेना हमने, डेटर्स भी नहीं लेना हमने, और कैश एंड बैंक भी नहीं लेना हमने. देन कम्स द कैपिटल. हियर इज़ द चेंज इन द कैपिटल, दैट इज़ 80,000 टू 85,000. अब इसका जो बैलेंस है जो 5,000 है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड है. सोर्स ऑफ फंड क्यों है, इसमें हमारे पैसे जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें सोर्सेज में इसको डालना है, कैपिटल 5,000. देन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको बैलेंस निकाल के दिखाया था यहाँ पे, तो इसका हमने सिर्फ बैलेंस ही लेना है. जैसे यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे हमने ब्रॉड डाउन लिया था, यहाँ पे कैरी डाउन मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिया था, और इसका जो भी हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई थी वो 10,000 थी. तो देखो जब हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं तो सिंपल जो मेथड होता है ना, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है, इस साइड आई है,
तो ये क्रॉस में जाती है, हमेशा क्रॉस में जाती है अकाउंट्स के। तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हो रहा है। तो जब भी हमारे जैसे फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसके क्रेडिट साइड आ रहा है, तो जब हम इसको भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं तो इसके कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। इस साइड पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस होते हैं वो भी हम इसमें फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लेते हैं। तो कब लेते हैं, जब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो इधर आएगा, जब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो इधर आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मीन्स है कि हमारे पास कुछ आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, सोर्सेज में क्यों ले रहे हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिया हुआ कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है हमारे क्वेश्चन में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो है वो 10,000 है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने एप्लीकेशन साइड पे क्यों लिया है, इसका भी एक रीज़न है। एप्लीकेशन साइड पे इसलिए लिया है क्योंकि जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में उसमें क्या होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं वही हम लोग लेते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे लॉन्ग टर्म के जो फंड्स थे उसमें से निकाल के हम कहाँ पे डाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो हमारे लॉन्ग टर्म के जो फंड्स हैं वो तो कम हो रहे हैं ना, तो हम जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो एप्लीकेशन साइड पे डालते हैं। तो ये रीज़न है इसके लिए, और उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है जो कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। ये हमारे क्वेश्चन में आज नहीं है, पर मैंने यहाँ पे शो कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि इंक्रीज़ क्यों आया और डिक्रीज़ क्यों आया। हमारे क्वेश्चन में क्या है, फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमने यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ डाली है 10,000 की, और जो हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो भी आज 10,000 है इस क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। तो मॉर्टगेज की वैल्यू थी जो हमने 5,000 डाली हुई है। तो जब हम इस अकाउंट को टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें सोर्सेज गिवन है, सोर्सेज 20,000 है ना, एप्लीकेशन 10,000 है, पर यहाँ पे जो है वो टोटल सेम आ रहा है, टोटल 20,000 आ रहा है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमने ये बैलेंस करने के लिए अमाउंट्स भी डाल दिए हैं इसमें। तो जब भी हम लोग मतलब सोर्सेज जो हैं वो कितने होंगे, 10,000, 5,000 प्लस 5,000 कितना होगा, 20,000। और यहाँ पे जो है हमारा एप्लीकेशन सिर्फ कहाँ पे हो रहा था, 10,000। तो ये हमने अप्रोप्रिएशन वाली अमाउंट निकाल ली है, मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाली निकाल ली है। तो वो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो हमने यहाँ तीनों मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है।